Hello everyone. So I have with me today CA Final AIR 19 Suhavi Jindal. Congratulations Suhavi and कैसा रहा आपका last 24 hours? Run us through it. Thank you so much, sir. Firstly, I would really want to thank you because I think all the guidance and support which all of you provide us through, of course, all these channels, it actually helps us a lot during our preparation times. So, thank you so much for that. And of course, yesterday was a very lovely and a memorable day. And because I was not at all expecting this, and that result would actually come in my favor. So, the feeling has not yet sunk in, but it was a nice day because the relatives, friends, everyone was visiting over, and of course everyone, to see them so happy, super excited. And the best part was to see your parents so excited because I don't have any CA background in my family, तो उनके लिए तो ऐसे था कि घर में कोई पहला बच्चा CA बन गया है, so they were so excited. And still today also मतलब मेरे से ज्यादा कॉल्स उनको आ रहे हैं, and वो सुबह से मतलब from yesterday only वो कॉल्स पे नॉन स्टॉप. चलो वेरी नाइस. तो आपने सीए करना जो आपने बोला, फैमिली में कोई सीए नहीं था, तो आपने क्या इंस्पिरेशन लिया या फिर आपने सीए डिसाइड कैसे किया कि आपको सीए करना है और अभी आप रैंक भी लेके आ गए? Sir, I always used to I used to love numbers. Numbers में I had a great interest, and मेरे family में we already had people doing engineering. तो मुझे था ये नहीं करना है अब, because I'd seen them studying for, they were like doing preparations for IIT or all that stuff. तो मुझे था इतना मैं नहीं पढ़ूंगी और मुझे ना ही पढ़ना है. और So I नहीं thought, पढ़ने के लिए आपने सीए सिलेक्ट किया? because during COVID we were all totally free, कुछ नहीं था, तो मुझे था चलो we can take this up. This is the best option available. And of course, I think I had heard this, that the pool of knowledge, and apart from knowledge also, this course actually teaches you like patience, discipline, and I think that are key, very important factors. So I was like, I think like we can try it once. वेरी गुड डिसीजन इन द हाइंडसाइट. Yeah, और right. आपको सीए इंटरमीडिएट में रैंक नहीं था, राइट? No, एंड आपका I फाइनल में डायरेक्टली 19 टॉप did. 20 में आप आ गए. हाउ डिड यू पुल दैट ऑफ? So, in the intermediate exams, I sat for both the groups separately. अच्छा. But तब भी initially मेरा plan यही था कि दोनों groups इकट्ठे देने हैं. But end में I ended up giving them separately. तो वो दिमाग में तब से था कि रैंक लानी है, because back in time जब फाउंडेशन एग्जाम मेरा वाला अटेम्प्ट था तो रैंक्स वो डिसकंटिन्यूड, एंड तब आई गॉट डिसेंट मार्क्स कि उस पे रैंक आ जाती कोई. तो तब मुझे बहुत था कि यार मार्क्स भी ठीक आए हैं, रैंक भी नहीं है इस पे, तो फिर तब से मुझे था कि एटलीस्ट वी शुड ट्राई फॉर इट एंड होपफुली इफ वी कैन गेट थ्रू. तो इसलिए आई मेड माई माइंड कि एक बार फाइनल्स में आई हैव टू लाइक गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर नो मैटर व्हाट. तो एटलीस्ट यू कैन ऑल्सो लाइक यू कैन टेस्ट योर बाउंड्रीज एज वेल कि आप एक्चुअली कर भी सकते हो या नहीं. सो दैट करेक्ट. वाज द की थिंग. दैट इज वेरी नाइस. एंड जैसे जो अपने एफआर का पेपर है, काफी बड़ा पेपर है, तो आपने आपके आर्टिकलशिप में, स्टडी लीव में कैसे ये पेपर को मैनेज किया? फर्स्ट, अपने लेक्चर्स, जो अपने इतने सारे लेक्चर्स होते वो आपने कवर कैसे डिसिप्लिन्ड मैनर में कर पाए आप? So, sir, basically, initially, I wasted a lot of time on this subject because I took my classes from some other faculty. But then I couldn't, I was not very comfortable with their teaching style. So, तब तो मैं बिल्कुल उसमें थी कि now what? So, I used to, contacted with a lot of people कि मैं अब FR किससे लूँ. So, then I finally, and I'm grateful, I landed up with your classes. So, I think तब आपका एक live batch start होने वाला था. So, I enrolled into that. और उसमें आपकी सुबह 7 AM क्लास होती थी. तो आई यूज्ड टू मेक श्योर, एंड आई थिंक वो 10:15 तक होती थी, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं क्लास कंप्लीट करने के बाद ही ऑफिस जाऊँ. और कभी अगर वो रह जाती थी तो ऑफ कोर्स यू प्रोवाइडेड अस विद द बैकअप लेक्चर्स एज वेल. तो वो मैंने कंसिस्टेंटली आपके साथ किया है, मतलब आई मेड श्योर कि मैं कोई भी क्लास नहीं मिस कर रही हूँ. तो लेक्चर्स आई कंप्लीटेड दैट वेज. आई ट्राइड तब कि जो आप सुबह पढ़ा रहे हो मैं शाम को रिवाइज कर लूँ, बट वो प्रैक्टिकली दैट वाज आई आइडियलिस्टिक, थिंक आइडियलिस्टिक. सो इट डिडंट हैपन एट ऑल. मतलब थोड़े दिन तो ट्राई किया चलो, क्योंकि सबसे पहले जो इंडेक्स 16 होता है ना वो अच्छा भी बहुत लगता है, बिकॉज वो हाँ. मतलब दैट इज इजी टू ग्रास्प. तो वो तो मैंने मजे से कर लिया कि चलो सर ने आज सुबह कराया, आई डिड द क्वेश्चंस खुद से. बट उसके बाद जैसे जैसे द सिलेबस वेंट ऑन तो उसके बाद तो वो छूट गया. सो आई कुडंट रिवाइज एनीथिंग. तो मैंने हाँ. बस आपके लेक्चर्स देखे थे.
एंड एडिशनली आई डिड दिस कि जो जो आप मतलब वट एवर नोट्स और वट एवर यू यूज टू मेक अस राइट, वो आई मेड लाइक प्रॉपर नोट्स, तो उसमें आई कोई वो नहीं था, देयर वाज नो शॉर्टकट मतलब। तो आई जस्ट मतलब सिर्फ आई डेंट यूज टू मार्क इन द बुक, वो मैं खुद से लिख लेती थी ताकि आई कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हैंड्स ऑन इट। ओके। एंड जैसे स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी होता है कि एक बार क्लासेस कर ली तभी सब लोग को समझ में आता है, बट बिकॉज वो गैप इतना बड़ा होता है आपके क्लासेस से एंड आपके स्टडी लीव में, तो वो स्टडी लीव में आपको ऐसा हुआ था कि याद नहीं आ रहा है, या फिर आपने कुछ कैसे उसको मैनेज किया? डेफिनेटली सर, स्टडी लीव जैसी स्टार्ट हुई थी, सो आई डिडंट लाइक आई स्टार्टेड विद डीटी एंड आईडीटी फॉर द फर्स्ट रिवीजन। सो डीटी आईडीटी करने के बाद जब मैं एफआर पे आई तो मुझे ऑल्दो पहले ही बहुत बच्चों ने डरा दिया था, एफआर तो बहुत लंबा है, नहीं होता रिवाइज, और मैं इतनी उससे पैनिक थी ऑलरेडी। सो आई बॉट योर रिफ्रेशर, क्योंकि मेरे को था अच्छा। आई हैव द नोट्स एंड मुझे था कि रिफ्रेशर है, घंटे भी कम है, मैं जल्दी से देख लूंगी द कॉन्सेप्ट वाला पार्ट एंड द क्वेश्चंस वाला पार्ट, आई सॉल्व इट ऑन माय ओन बिकॉज माय मेजर कंसर्न वाज द कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। तो मुझे था कि कॉन्सेप्ट मुझे एक बार रिवाइज करना है और उसके बाद आई डू, सो आई बॉट योर रिफ्रेशर एंड देन आई सॉ द इंटायर कोर्स। एंड उसके साथ साथ मैं फर्स्ट रिवीजन कर लेती थी, मतलब मैंने रिफ्रेशर में क्वेश्चंस वाला पार्ट आई यूज टू स्किप एंड जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो आई यूज टू लाइक प्रॉपरली अंडरस्टैंड अगेन एंड देन आई थिंक मुझे तो बहुत हेल्प हुई अपनी एफआर की रिवीजन में उससे। ओके ओके। एंड आपने फिर अलग नोट्स बनाए थे? आप अलग अलग मटेरियल देखते थे या फिर आप एक सिंगल मटेरियल को बेस करके रखे? Sir, I think I only referred your books, like the three questionnaire wala books and one FR Shield. So that was my only four books. ICA module, though I didn't even touch. And even for IBS, people told me कि एक you should carry all the books कि जितनी भी है ले जाओ because you don't know कौन सी बुक काम आ जाएगी। तो मैं लेके सबकी गई थी सारी बुक्स, बट एफआर आई स्टिल लेफ्ट। मुझे था कि मैंने कभी खोली भी नहीं है, मैं एग्जाम में आई वोंट बी एबल टू फाइंड ऑल्सो एनी क्वेश्चन, तो मुझे था आई मैनेज विद योर बुक्स ओनली। So FRK, I didn't take any books for that exam as well. ओके, सो आपने लार्जली कॉन्सेप्ट शील्ड के बेस पे ही कवर किया? Yeah, yeah, right. ओके ओके। एंड यू फाउंड इट टू बी सफिशिएंट? So definitely, totally. I mean, they were totally sufficient. And of ओके। course, I think that was very helpful because आप जो भी साथ साथ explain करते थे ना, I used to write it. But then I also noticed कि अभी आपने recently अपनी shield update की थी ना, because mine was the older version. तो उसमें I think आपने वो parts भी inculcate up कर लिए थे सारे. ओके। Like the smaller notes or the key points which like you want us to remember जो हम गलत भी कर देते हैं। तो I think FR Shield is the savior because otherwise तो मॉड्यूल्स देख के मुझे डर लग गया था कि FR कैसे होगी, मतलब इट सच ह्यूज क्वांटम ऑफ सिलेबस एंड देन सभी बोलते हैं FR सबसे लेंदी है, 5 महीने में हम क्लासेस कर रहे हैं। सो हम्म। चलो अच्छा है। बट आपके जो स्टडी लीव में आप मेरे को बताइए, हाउ हैज बीन योर जर्नी? आपका वर देयर पीरियड्स ऑफ हाइज एंड लोज? डिड यू ऑलवेज थिंक दैट यू विल गेट अ रैंक, या हाउ डिड यू मैनेज द सो आई ऑलवेज थिंग्स वांट आउटसाइड ऑफ योर एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स? So I always wanted to like get a rank, or I was in hindsight, I was preparing for it as well. But I think the study leave this time it was more challenging than what I expected it would be because सबसे ज़्यादा तो self doubt था because पढ़ते पढ़ते कभी कभी लगता था यू आर नॉट इवन हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन कि आप जो कर रहे हो वुड दैट रियली बी हेल्पफुल और नॉट। और एक मुझे तो टाइम क्रंची बहुत लग रहा था कि इतना सारा है एंड आई एम नॉट एबल टू रिटेन एनीथिंग बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड विद डीटी देन आईडीटी देन एफआर, जब मैं एफआर तक आई तो डीटी तो टोटली ब्लैंक था एंड कभी कभी आई यूज टू रिकॉल कि चलो टीडीएस का देखती हूँ व्हाट आई रिमेंबर, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आता था बिकॉज इट वाज टोटली ब्लैंक। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, the self doubt. And of course now I can say कि if you consistently show up, so that is हो सकता your, I think you have to trust the process. If you are trusting your process, so things will fall in place. But that was actually because I used to also hear videos of other rankers or other students who kept posting about how their experience has been, और मैं सोचती थी मेरा इनसे कुछ नहीं मैच कर रहा है, so I think I should stop it and I should just focus कि मेरा first goal should be to clear the exams है। and I should, because I wasted a lot of my time. I was हाँ। in, even when the result came for the May 2025 exams, the entire day I just wasted my time surfing, looking out for videos कि इसने कैसे पढ़ा ये subject, इसने ये subject कैसे पढ़ा. So I think
That was the most challenging part. ओके ओके। इनफैक्ट सो इफ आई वर टू समराइज, पहले आप स्टार्ट करो अज्यूमिंग कि आपको रैंक आना है, मेहनत करो, फिर आप वो पॉइंट पे आ जाओ कि भाई अभी पास भी कर दे तो बहुत है, और उसके बाद रैंक एक्चुअली लेके आओ, राइट? चलो दैट्स गुड। एंड आपकी जो लास्ट 1.5 days होते हैं, काफी बच्चों को उसमें भी डिफिकल्टी आता है, तो हाउ डिड यू मैनेज इन द लास्ट 1.5 days बिफोर द एग्जाम? एफआर में तो चलो यू हैव, आपने एफआर के पहले कैसे किया था? पूरा आपने कोर्स पढ़ा था, यू हैव इनफ डेज फॉर एफआर, राइट? Sir, I took 7 days for FR. ओके। So I took a like decent amount of time because मेरे को लास्ट में पैनिक पता था बाकी में तो होना ही है, so I had to do that in FR. And I also wanted कि मैं FR 2 बार रिवाइज कर लूँ before the exam because it ओके। was the first exam, so I wanted कि अगर you have that edge कि आप पढ़ सकते हो. So I took 7 days, तो मैंने अपने 6 days में सिलेबस खत्म किया था, एंड जो एंड का 1.5 days होता है उसमें अगेन दोबारा सिलेबस करने का ट्राई किया था. तो उसमें मैंने जैसे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर कंसोलिडेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन का बेसिकली द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन या द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, वो ट्राई किया था कि आई गो थ्रू देम वंस. एंड आई हैड प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स, वो सारी आपकी एफ आर शील्ड वॉज द सोर्स फॉर देम. तो मैंने बहुत ही कंसाइज लिखे थे, तो आई हैड जस्ट लाइक 7 to 8 pages फॉर द इंटायर सिलेबस. एंड उसको आई रिवाइज्ड इट थ्राइस और लाइक 4 times कि एग्जाम से पहले, ताकि कॉन्सेप्ट सारे मेरे माइंड में रिटेन रहे हैं, बिकॉज आई ऑफ कोर्स आई कुडंट प्रैक्टिस मच तब. तो ऐसे. और एएफएम में जैसे लास्ट 1.5 days यूजुअली डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? तो आप अगर स्टूडेंट को एक जनरल लेवल पे एएफएम का, आप अगर आप गाइड कर सकते हो कि आपको पेन एंड पेपर पे करना चाहिए एएफएम, या फिर सम सिर्फ देख ले, लास्ट 1.5 days में इतने सारे सम्स हम कैसे 1.5 दिन में कवर करें, तो हाउ विल यू गाइड? To cover the entire 100% syllabus on pen and paper, I think it is realistically impossible in the last 1.5 days. We had 2 days of leave for AFM, but मुझे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. But I had marked questions very clearly पहले से ही. तो I had the entire list of questions. तो I specifically didn't refer to any list of questions जो ऐसे किसी ने प्रोवाइड किए हों कि आप ये क्वेश्चंस करो. जो मुझे लगता था मेरे लिए डिफिकल्ट है वो मार्क्ड थे, और उसके अंदर आई मार्क्ड दी एडजस्टमेंट्स कि इसमें मैं गलती करती हूँ. तो आई मेड श्योर वो तो मैं 100% पेन एंड पेपर पे सॉल्व करूँ. एंड अभी तो मेरे साथ ये भी होने लगा था, मैं कैलकुलेटर ही गलत चलाने लगी थी. तो मैंने तो एफएम में बहुत ट्राई किया कि मैं प्रैक्टिस करूँ, बिकॉज मैं एंड में देखती थी आई डिड द एंटायर थिंग राइट बट द आंसर इज रॉन्ग एंड हाउ कम. तो मैं देखती थी द देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कैलकुलेशंस, बिकॉज वो जल्दी में ऐसे इतना ज्यादा था. बट एएफएम में जो हमारे कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर्स होते हैं, दैट आई डिडंट प्रैक्टिस ऑन पेन एंड पेपर बिकॉज उनमें बहुत टाइम लगता है. एंड आई वाज श्योर कि वो क्वेश्चन में आएगा तो मैं छोड़ कर आऊंगी. तो फिर तो फिर कैपिटल बिल्डिंग तो स्कोरिंग होता है, नहीं? सर इट इज स्कोरिंग, बट आई बिकॉज जो वो कन्वर्ट करने का होता है ना फॉरेन करेंसी में, तो आई फॉरेक्स वाज अ नाइटमेयर चैप्टर फॉर मी. तो ओके। इसलिए मुझे था वो 3 चैप्टर्स तो मैं लाइन में, फॉरेक्स तो ऑफ कोर्स मैं प्रैक्टिस करके गई थी, अदरवाइज एग्जाम में कुछ भी ना होता. कैपिटल बजटिंग तो आई जस्ट लाइक ग्लांस थ्रू इट कि बिकॉज उसमें वैसे वो एनपीवी वाली कैलकुलेशंस होती है, तो वो आई हैड अ क्वाइट फेयर आइडिया अबाउट इट कि मैं मैनेज कर लूंगी एग्जाम में अगर बहुत ही उसमें आ गया. अदरवाइज आई प्लान की, क्योंकि वो मेरे लिए वो हमेशा टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना. बट ऑल्दो आई अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन इन माय एग्जाम, वो आया था, बट इट वाज वेरी डायरेक्ट. ओके ओके। एंड आईबीएस में आप कैसे गाइड करोगे स्टूडेंट्स को टू प्रिपेयर? Sir, IBS this time was a very, I found it to be a very tough exam. बिकॉज एक तो एग्जाम के 1.5 दिन में यू आपको समझ नहीं आता आप क्या प्रिपेयर करो और क्या ना प्रिपेयर करो. तो मैं आई वुड सजेस्ट कि एवरीवन शुड एटलीस्ट गिव वन मॉक फॉर आईबीएस. आई गिव अ मॉक टेस्ट अर्लियर. तो मैंने प्रॉपर वैसे ही किया था कि बुक सारी ऑलरेडी आई प्लेस्ड कि मैं कैसे कहाँ पे कौन सी बुक रखूंगी. एंड आई मार्क्ड ऑल लाइक द इंडेक्सिंग एंड ऑल, आई डिड दैट प्रॉपरली. तो मैंने दैट वाज नॉट इन द 1.5 डे, मैंने वो पहले ही कर लिया था. लाइक ड्यूरिंग द स्टडी लीव ओनली आई गेव अ मॉक फॉर आईबीएस. एंड देन जो 1.5 डे था उसके अंदर जो लॉ और कॉस्ट वाले सब्जेक्ट्स थे, आई फोकस्ड ऑन देम बिकॉज उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे. एंड इवन इन आवर अटेम्प्ट हर अगर आप हर क्वेश्चन देखो, लीविंग अपार्ट आई थिंक वन क्वेश्चन, हर में लॉ और कॉस्ट था ही. मतलब ऐसा नहीं था कि हम उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं. एंड इवन उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे. तो वो मैंने मेक श्योर किया था.
बट आईबीएस में एक तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू टेक वट एवर बुक्स दे वांट टू टेक, बिकॉज उसमें what I noticed is the all the questions they're direct from the books only. So if you have a good insight कि आपको पता है कहाँ पे आपको कैसा आंसर मिल जाएगा, even if you know the topic you can find the question. Because I remember in our exam we got one question from bond refunding, और वो थियोरी क्वेश्चन था बॉन्ड रिफंडिंग का। तो वो जस्ट बाय रीडिंग आई कुड लाइक द रीडिंग द पैराग्राफ ऑफ दैट केस स्टडी, तो मुझे लगा ये बॉन्ड रिफंडिंग का है, बट आई वाज श्योर कि ये मॉड्यूल के अलावा किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, बिकॉज वो उसके पार्ट्स भी थे क्वेश्चन के। एंड एएफएम का मॉड्यूल भी वैसा मॉड्यूल था जो मैं लेकर नहीं जा रही थी कि ये तो कभी खोला भी नहीं है, मैं कैसे ढूंढूंगी। बट जस्ट बिकॉज मेरे को टॉपिक पता चल गया था बॉन्ड रिफंडिंग एंड आई न्यू द चैप्टर, तो मैंने खोला एंड एक्चुअली इट वाज कॉपी पेस्ट। मतलब I was able to like find around 6 questions which were exactly copy paste from the Wow. books. Like you Okay, could that's copy them easily. So okay. yes, I think presence of mind is the most important in IBS in that exam. ओके। एंड अगर कोई अभी आपको सुन रहा है एंड आपसे अगर आपके कोई एक या दो ट्रेड्स आप बताओ जिसने आपको हेल्प किया ये गोल अचीव करने का, व्हाट वुड दैट बी? I think the most important thing would be to show up. I think consistency. I think that is the key, because uh, even if you are studying 8 hours a day every day, that is better than if you study 2 hours today and then 10 hours the next day. So I made sure that I am because ऐसे days होते थे जब बिल्कुल लगता था कि आज मन भी नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, and there were days also जब ऐसा लगता था कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लाइक बर्निंग आउट, कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। बट उन डेज पे भी आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं कोई सिंपलर टॉपिक कर लूँ, इफ नॉट लाइक नॉट पिकिंग अप समथिंग न्यू, बट जो ऑलरेडी पढ़ रखा है या तो मैं उसको पढ़ लूँ, या फिर जो भी बहुत कंफर्टेबल टॉपिक है तो आई कैन पिक अप दैट। बट आई बिकॉज देन यू गेट इन टू दैट गिल्ट ट्रैप ऑल्सो कि कल का दिन भी वेस्ट हो गया, फिर अगले दिन भी नहीं पढ़ाई होती। सो आई थिंक शोइंग अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। And I also think one more important thing, I think we should cover 100% of the syllabus. Agar, because if you are completing 100% of the syllabus, तो आपकी probability of attempting more in the exam increases. तो वो मुझे लगता है कि एक beneficial चीज़ है, because अगर आप 100% आप एग्जाम आप पढ़ के गए हो तो उसमें से you can manage at least like 40 तो आप easily manage कर लोगे। Okay, okay. And so you are saying consistency is very important and exhaustive coverage, ये दोनों आप काफी ज्यादा emphasis रखोगे. And any other last parting words, any words of wisdom, pearls of wisdom that you would like to share with some other student जो अभी result के बाद आपको सुन रहा है? I think I would, to all the CA students, I would definitely say that uh, we have to trust the process, because ये सबको लगता है कि हमें कुछ नहीं याद रह रहा है, and I think this time I am the biggest example for that, because I wasted actually a lot of time during my study leave, and सिर्फ ये सोचते हुए कि मुझे कितना याद आ रहा है या कैसा होगा रिजल्ट। बट I today I can like say that कि if we are consistently showing up and we are actually putting in 100% of our efforts, तो ऑफ कोर्स एग्जाम में वो चीज़ याद आती है। बिकॉज व्हाट आई रियलाइज्ड इज एग्जाम में आप उसी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, यू हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको वो एग्जैक्ट चीज क्लिक कर जाती है, एंड इवन यू आपको पेज भी पता चल जाता है कि अच्छा ये यहाँ से आ रहा है। सो आपको आ जाता है याद एग्जाम में ऑन द डे ऑफ एग्जाम। और अभी बिकॉज वी आर डूइंग 6 सब्जेक्ट्स इन अ रो एंड एवरी डे हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, तो वो दैट इज मेंट टू हैपन। Intimidating होता है। सो आई थिंक वो याद आ जाएगा। तो इफ एनीवन इज फेसिंग दैट, सो नाउ आई कैन से कि हो इट इज ट्रू कि आपको एग्जाम में याद आता है। तो आई That's थिंक good. That's very reassuring, and thanks a lot, Suavi, for all the time that you have spent. And I really hope that someone listening to you also cracks an AIR and remembers your wisdom. Thank you very much, and थैंक यू सो मच congratulations सर। again. थैंक यू सो मच सर।